everyone, I am Surbhi Gupta. Welcome back to Equipoise classes, and if you are new then do watch my previous videos and then come back to this video, or you're most welcome to just stay with me and let's just proceed with the video. So as you know by my previous videos, people who have been watching the videos, they know that we are currently talking about national income accounting, and we have studied about what is national income, why is it important, why we are talking about national income, and how do we calculate national income. There are three methods and we have already covered the product method. So in the future videos we'll also cover the income method and the expenditure method, but before proceeding with those two methods, I would like today to cover this topic, that is difference between GDP, GNP, or gross domestic product, gross national product. So people these days really are confused about what is the exact difference between domestic income and national income. So what happens is that we tend to confuse between the two and use the two simultaneously. In place of one we use the other, and that's how we just mix things. But the difference between, to understand the difference between the two is very important to move ahead to the next two methods, that is the income method and the expenditure method. So that is why I wanted to bring to you guys a short video covering this topic. So we will just quickly cover this topic today. To understand the difference, we have to understand two things, that is what is economic territory and what is resident or citizen. Okay, so we'll just understand this and then you will automatically understand the difference between the two. So economic territory is a geographical territory. So you can just find the definition over here, and you are always free to just pause the video when I am not here and just write it down in your notebooks to cover it in a deep manner and read it later on, or you're most welcome to just rewatch the video again. But right now, economic or domestic territory is a geographically administered territory by government within which person, good and capital circulate freely. Okay, so here by looking on the board, you can just see that this circle is a geographical territory. This is a geographical territory, and here these dots are person, goods, capital, and since this is our territory, this circle, this is a fence for example, and this fence is our territory that our government is administering. So when our government is taking care of this zone, so we as people of this territory or capital or goods or services are free to circulate within this region. And when they can do so, this is known as our economic territory or domestic territory. Okay, so this is the meaning. And what all is included in economic territory? So friends, political frontiers including territorial water and airspace. So we are not merely talking about land. Here I have given you the example of land, but the airspace where our planes are moving, there's a certain airspace which also comes under our economic territory. Say we are taking example of India presently because we are Indians. So this is our domestic territory, this is India's territory, and not only land is covered but also airspace and water space is also covered. So even in the waters there is a certain extent to which that is known as our territory, and then beyond that limit is international waters. But in the domestic territory, what I mean to say is land is included, even part of water is included, and airspace is also included. So this is the thing. Then in the abroad, our embassy, Indian embassy in any other country, say Australia has Indian embassy, so the Indian embassy in Australia is part of our territory. It's our territory, it's our space, we can move freely there. So okay, it is a part of our territory, it is not Australian territory, it lies in the Australian country, so Australian zone, in that
particular zone, but that part particular is our territory. Okay, then military bases that are located abroad, which is our military bases where our people are staying and army is, so those military bases are part of our territory, Indian territory. Then ships and aircraft operated by residents between the two countries. So residents, again, to understand what is resident, we will move here, but then we are living here and we are operating any ship or aircraft between two countries. So those ships and that aircraft is also part of our territory, not there. If we are taking our ship to say Sri Lanka, so the ship is our territory. That ship is not Sri Lankan territory. We are taking it to Sri Lanka, but it is part of our territory. Okay. Then fishing vessels, oil and natural gas rigs operated by residents in international water. So the certain things that are operated by our residents in international water, that is also part of our territory. Okay, now we'll come to resident and citizens. So person or institution who resides in a country and whose center of economic interest lies in country. Guys, this is very, very, very important. So person or institution who resides in a country. I am residing in my country. I am a resident of my country. But if I am a resident of my country or not is dependent on the fact that if my economic interest lies in this country, that I am working in this country or not. It may happen so that I am living in this country, but what I am earning from this country is going to some other country. Then I am not a resident. Okay. Resident is somebody who's living in the country at the same time whose center of economic interest also lies in country. Exceptions bhi hai. So we'll just quickly come to the exceptions. Diplomats and official of foreign embassy. जैसे इंडियन एम्बेसी ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की टेरिटरी है, वैसे ही ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी अगर इंडिया में है तो वो ऑस्ट्रेलिया की टेरिटरी है. ओके, सो दैट इज ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी. तो अगर उस एम्बेसी में फॉरेन डिप्लोमेट काम कर रहे हैं तो वो हमारी कंट्री के रेजिडेंट्स नहीं है. वो हमारी कंट्री में रह जरूर रहे हैं क्योंकि उनकी एम्बेसी हमारी कंट्री में, लेकिन वो अपनी एम्बेसी का पार्ट है, वो अपनी टेरिटरी का पार्ट है, वो अपनी टेरिटरी में रह रहे हैं, इसलिए वो अपने जगह के रेजिडेंट हैं, वो हमारे रेजिडेंट नहीं हैं. एक और एग्जांपल लेते हैं. आप में से अगर कोई कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं एंड इन फ्यूचर इफ यू आर वेरी फॉर्चुनेट एंड लकी एंड यू गो इनटू इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज या इंडियन फॉरेन सर्विसेज. सो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जब आप रहेंगे और आपने अपनी प्रेफरेंस डाली कि आप रशिया में मूव करना चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट 9 months. So once you will go to Russia, you will live in Indian embassy. So Indian embassy in Russia is our territory, Indian embassy, and you are a foreign diplomat for them. You are an Indian diplomat for them. So you are still our resident. You are living in Russia, but you are not a Russian resident because you are part of our embassy, our territory. Embassy is our territory. Okay. So that is one exception. Then, if you are a tourist or a student, see there are many Indian students who go to Australia to study. So if you've gone to Australia to study, so does that mean that you're Australian resident? Well, no. You are Indian resident because you are an Indian student for Australians. Okay. Then if these days people even in the corona times are going to Maldives and enjoying their holiday. I don't know how, but then some people are doing it. So no offense to them. The tourists who have gone to Maldives from India, so they are Indian residents. They are not the residents of Maldives. They are still Indian residents. They have just gone there to enjoy. Or any traveler from India who's gone to somewhere else is still Indian resident. Okay. Then people working in international organizations like WHO, IMF, UNESCO are treated as normal residents of the country to which they belong. Now this is one exception कि जिस भी आप कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहे हो तो आप वहीं के रेजिडेंट हो जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हो. अगर WHO में एक इंडियन काम कर रहा है तो वो इंडियन रेजिडेंट है, एक ऑस्ट्रेलियन काम कर रहा है वो ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंट है,
अगर श्रीलंकन काम कर रहा है वो श्रीलंकन रेजिडेंट है, नो मैटर WHO की खुद की बिल्डिंग कहाँ पर है, लेकिन आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हो आप वहीं के रेजिडेंट हो। एज सिंपल एज इट कैन गेट। ओके, सो ये कुछ कॉन्सेप्ट हो गए। अब हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि डिफरेंस क्या है। सो सी GDP एंड GNP अभी के लिए लेते हैं। बहुत कंफ्यूजन है लोगों को कि है क्या, और बहुत सिंपल है ऐसे समझना। देयर इज नथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अपनी 12th में थैंक्स टू माय टीचर एंड थ्रू दिस मीडियम, इवन इफ माय टीचर इज वाचिंग, थैंक्स टू हिम दैट उन्होंने ये इतना आसानी से समझाया कि मैंने उसके बाद बहुत लोगों की हेल्प की, एंड नाउ आई एम हियर टू हेल्प यू गाइज एज वेल। बिल्कुल सिंपल समझना। डोमेस्टिक टेरिटरी है, ये आपका फेंस हो गया, ये आपकी गवर्नमेंट एडमिनिस्टर कर रही है, आप यहाँ रहते हैं। तो अब यहाँ अंदर रह के कोई भी रहे, ओके, एक रेजिडेंट भी रह सकता है। मैं यहाँ रहती हूँ, मेरा इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेंटर यहीं पर है, तो मैं यहाँ की रेजिडेंट हुई। एक नॉन रेजिडेंट भी रह सकता है ना। यहाँ हो सकता है WHO की बिल्डिंग है हमारे दिल्ली में, और यहाँ पे एक ऑस्ट्रेलियन काम कर रहा है, तो वो ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंट है, वो भी यहाँ रहता है। तो GDP हमेशा डी पे फोकस करना। डी मतलब होता है डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और डोमेस्टिक का मतलब होता है टेरिटरी डोमेस्टिक। इस टेरिटरी के अंदर चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, कोई भी हो, सिटीजन हो, कोई भी हो, लेकिन जब तक ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुआ है तो ये GDP का पार्ट है। ओके, अब नेशनल, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसमें हमारा फोकस कहाँ है? ग्रॉस ग्रॉस दोनों में सेम है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम है, फर्क क्या है? डोमेस्टिक और नेशनल। डोमेस्टिक मतलब टेरिटरी, और नेशनल हमेशा मतलब सिटीजन या रेजिडेंट, कि अब वो हमारा रेजिडेंट होना चाहिए। ठीक है, सिटीजन हमारा जो है कहीं भी बना रहा है, कहीं भी बना रहा है, मतलब अगर हमारे सिटीजन ने यहां पर है, ठीक है, इंडिया है, कोई गुड इंडिया में बना है, रेजिडेंट ने बना दिया। ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया का जो ऑस्ट्रेलिया में सिटीजन है हमारा, इंडियन है, इंडियन रह रहा है ऑस्ट्रेलिया में, और उस इंडियन ने क्या काम किया है वहां पे, उसकी जो इनकम है। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हमेशा सिटीजन की इनकम काउंट होती है, नो मैटर वो कहाँ रह रहा है। टेरिटरी मैटर नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं मैटर करती टेरिटरी। मैटर सिर्फ इतना करता है कि वो हमारा पार्ट है या नहीं है। लेकिन डोमेस्टिक में मैटर करता है कि कोई भी हो, सिर्फ टेरिटरी के अंदर बनना चाहिए। किसी और देश में बन रहा है तो हमें उसको काउंट नहीं करना। डोमेस्टिक इनकम में सिर्फ वो होगा जो हमारी टेरिटरी में बना है। लेकिन नेशनल में टेरिटरी में बना हो या ना बना हो, हमारे किसी इंडियन ने बनाया होना चाहिए, या हमारे किसी इंडियन की इनकम होनी चाहिए। अब इसमें भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं अपने कजन की किसी की बात करती हूँ, तो वो दुबई में रह रहा है, ठीक है, वो दुबई में काम कर रहा है, वो दुबई में अर्न कर रहा है। ओके, सो when he is living in Dubai, he is earning in Dubai, so and his center of economic activities also lie in Dubai. Okay, तो अब क्या हुआ, अगर मुझे डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी है तो मैं उनकी इनकम कैलकुलेट नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि वो दुबई में रह रहे हैं, वो टेरिटरी में नहीं है, इंडियन टेरिटरी में नहीं है। इंडियन टेरिटरी में नहीं है तो उनकी इनकम GDP में कैलकुलेट नहीं होगी। पर वो क्योंकि हमारा ही वो इंडियन सिटीजन है, जब मैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने जाऊंगी तो मुझे नहीं फर्क पड़ता उन्होंने कहाँ बनाई है, एज लॉन्ग एज वो इंडियन है। तो वो इंडियन चाहे US में रह के अर्न कर रहे हो, चाहे दुबई में रह के अर्न कर रहे हो, वो कहीं भी अर्न कर रहे हो, एज लॉन्ग एज इज एन इंडियन, मैं उनकी इनकम नेशनल में कैलकुलेट करूंगी, पर डोमेस्टिक में नहीं करूंगी क्योंकि वो टेरिटरी में नहीं बनाई। ओके, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, कोरियन ओन Hyundai कार फैक्ट्री, आपको पता है, ठीक है, तो वो उन्होंने अपना फैक्ट्री सेटअप इंडिया में लगाया हुआ है, कोरियन ओन्ड है, लेकिन जो वो अर्न कर रहे हैं वो अपने GDP में देंगे क्योंकि वो उनकी टेरिटरी है। ओके,
सो बेसिक डिफरेंस जो है, हम इसे कॉम्प्लिकेट तो कितना भी कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में चीजें कॉम्प्लिकेट होती हैं, बट एक जो बहुत सिंपल डिफरेंस था ना, सिंपल, आपको ये याद रखना है कि डोमेस्टिक का मतलब है टेरिटरी और नेशनल का मतलब है सिटीजन। इंडियन होना चाहिए, फर्क नहीं पड़ता कहां पे बनना है, लेकिन डोमेस्टिक का मतलब है कोई भी हो, इंडियन हो नॉन इंडियन हो, लेकिन अपनी टेरिटरी में बनना चाहिए। ये चीज अगर आपको समझ आ गई तो आप आगे जाके इस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर में कुछ भी समझ सकते हैं। सो हमें जब जीएनपी से इस पे जाना होता है, जीएनपी से जीडीपी पे जाना होता है, नेशनल एंड डोमेस्टिक में डिफरेंस क्या आता है, नेट फैक्टर इनकम का। नेट फैक्टर इनकम क्या, कैसे समझ आया, आप ये आइडेंटिटी पे फोकस करिए। तो ये आइडेंटिटी है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल मतलब नेशनल आते ही एक इंसान को बना लो दिमाग में कि इसने इंडियन है, इसने बनाई होनी चाहिए, कहीं भी हो, टेरिटरी में हो ना हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो नेशनल का मतलब बंदा आ गया आपके दिमाग में आते ही, और डी आते ही आपके दिमाग में टेरिटरी आनी चाहिए, ठीक है। तो जीएनपी से अगर हमें यहाँ पे जाना है, या जीडीपी से हमें जीएनपी पे आना है, डोमेस्टिक टेरिटरी है, हमने जीडीपी कैलकुलेट किया, जीडीपी कैलकुलेट क्या हो गया कि हमने ये तो कैलकुलेट कर लिया कि हमारी टेरिटरी के अंदर कोई भी हो, कहीं का भी हो, लेकिन हमारी टेरिटरी में बना है, जीडीपी आ गया। ओके, अब आपके पास जीडीपी है। अब जीडीपी को आपको जीडीपी से एस्टिमेट लगाना है कि नेशनल इनकम क्या है, तो उस पर आप जाने के लिए क्या करेंगे, फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय डोमेस्टिक फैक्टर इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, डोमेस्टिक में क्या था, वापस यहाँ आओ, डोमेस्टिक में था सिर्फ टेरिटरी के अंदर बंदे ने बनाई, लेकिन अब आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है, और नेशनल के लिए आपको ये भी जानना जरूरी है कि जो आपका फैक्टर है, जो आपका इंडियन है बाहर दुबई में है फॉर एग्जाम्पल, उसने कितना अर्न किया, ये तो आया ही नहीं डोमेस्टिक में, तो ये आपने डोमेस्टिक में ऐड कर दिया कि दुबई में जो है, उस दुबई में जो मेरा कजन है उसने कितना अर्न किया, तो मैंने ये अपने डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर दिया, क्योंकि मेरे को नेशनल जाननी है, मेरे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। तो मुझे जानना है नेशनल क्या है, तो पहले मैंने डोमेस्टिक का कैलकुलेट किया कि अपनी टेरिटरी का कैलकुलेट कर लेती हूँ, आसान है कि मेरी ज्योग्राफी में कितने लोग का हुआ है, उसके बाद दुबई में मेरे कजिन ने कितना अर्न किया मैं वो ऐड कर दूंगी। ओके, एंड देन उसके आगे क्या होगा, फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी। लेकिन क्या हुआ, मुझे नेशनल पे आना है, नेशनल के लिए तो मेरे लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा बंदा हो, लेकिन टेरिटरी के अंदर तो दूसरा भी था, तो जो दूसरा था उसको हटा दूंगी, माइनस कर देंगे। दूसरे देश का जो था, ऑस्ट्रेलियन जो था, जो हमारे टेरिटरी में था, हमने उसको डोमेस्टिक में कैलकुलेट किया था, उसको मैं अब हटा दूंगी, क्योंकि मुझे सिर्फ ये जानना है कि हम इंडियंस ने कितना अर्न किया है। तो ना ये जो होता है ना कि किसी इंडियन ने बाहर कितना अर्न किया माइनस किसी बाहर वाले ने इंडिया में कितना अर्न किया, वो होता है नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो आपको क्या हो जाता है, जीएनपी से जीडीपी पे आने की आइडेंटिटी जो आपकी है वो है जीडीपी प्लस फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय डोमेस्टिक फैक्टर इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बाहर आपके अपने फैक्टर ने, डोमेस्टिक फैक्टर ने बाहर के देश में कितना अर्न किया है उसको टेरिटरी वाले इनकम में जोड़ दो, और टेरिटरी वाले इनकम से वो हटा दो जो बाहर वाले फैक्टर ने आपकी टेरिटरी में रहते हुए अर्न किया है। क्योंकि नेशनल में आपको मतलब है तो सिर्फ इंसान से जो आपका होना चाहिए, और डोमेस्टिक में आपको मतलब है टेरिटरी से जो कि आपकी होनी चाहिए। हमेशा सिंपल बेसिक ये याद रखना है कि डी डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब टेरिटरी, टेरिटरी मतलब ज्योग्राफी, फर्क नहीं पड़ता कौन है, आप हो बाहर का फैक्टर है, नो डिफरेंस, आपको सब इंक्लूड करना है। और नेशनल मतलब इंसान, सबसे पहले अपने दिमाग में पिक्चराइज कर लो, नेशनल मतलब नेशनैलिटी, नेशनैलिटी मतलब इंडियन, इंडियन मतलब कि इंडियन है चाहे कहीं भी किया हो, किसी भी टेरिटरी में किया हो।
और डोमेस्टिक आते ही सिर्फ टेरिटरी मैटर करती है, सिर्फ डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी, नो मैटर इंडियन है या नहीं है। ये एक छोटी सी बात थी जिसके लिए हमने इतना बड़ा ओवरव्यू किया, और आपकी बुक में भी आपको ये बहुत तरीकों से समझाया जाएगा, बट क्योंकि अब आपको ये ट्रिक पता है, ये शॉर्ट ट्रिक पता है कि जीडीपी आते ही माइंड में सबसे पहले क्या वर्ड आएगा, डोमेस्टिक, और डोमेस्टिक आते ही माइंड में टेरिटरी आएगी, और जीएनपी जैसे ही सुनोगे अब से तो माइंड में आएगा नेशनल, और नेशनल से आएगा नेशनैलिटी, और नेशनैलिटी से खुद को ही समझाने के लिए समझा लेना, नेशनैलिटी मतलब आपकी क्या, इंडियन, तो किसी इंडियन ने करा होना चाहिए चाहे कहीं भी हो। टेरिटरी मैटर नहीं करती, टेरिटरी मैटर करती है डोमेस्टिक में। इतनी सी बात अगर आप अब हर जगह, अब आपके माइंड में आ गया, आपको ये ट्रिक पता है, तो अब आप जब भी एनसीईआरटी पढ़ेंगे या कोई भी और बुक पढ़ेंगे वो आपको बहुत तरह के एग्जाम्पल्स देंगे, और इकोनॉमिक टेरिटरी में क्या इंक्लूड होता है वो मैंने आपको बता दिया। तो हम आगे क्विजेस लाएंगे जिसमें आपको समझाएंगे कि आपको गेस करना होगा कि वो जीडीपी है या वो जीएनपी है। सो वील ब्रिंग दैट क्विज एज वेल फॉर यू, बट फॉर द टाइम बीइंग दिस वाज द कॉन्सेप्ट, एंड इफ यू नो दिस ट्रिक, दिस जस्ट 1 minute trick, and you can connect it with the book and with the static portion that you will read from now on, you will understand the concept in a better manner, and for you to understand that concept beautifully, this trick was brought to you. So I hope कि आपको ये ट्रिक क्लियर हो ताकि अब आप इसे आगे अप्लाई करें, और यही चीज़ आपको फिर आगे इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड में बहुत हेल्प करेगी, जिसकी वीडियोस आपको नेक्स्ट टाइम देखने को मिलेंगी। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड यू लाइक द टिप्स एंड ट्रिक्स, एंड फॉर मोर सच टिप्स एंड ट्रिक्स आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड guys do promote the videos, because see what happens is this will help class 12th people, CBSE people, and even other people who are reading economics, because see for CBSE or boards can happen anytime, so this will help you also, and to any competitive people, this concept and the other concepts that we'll bring to you, this will help you in your respective domains. So I hope you liked it. Until the next time, thank you and see you again.